Hello students. So today we'll be now doing part 3 of our permutation and combination, the miscellaneous CBSE questions, and today the focus will be more of combination. The more focus would be made on combination, and some clubbing also would be there, right? And before we begin, don't forget to subscribe to the YouTube channel of Exemplar Point, and you'll keep getting updated classes, right? And you can watch our previous videos before looking at this part 1, part 2, and today we are doing part 3. So let's get rolling and going. Now the first question which we have is, how many words with or without meaning, each of 3 vowels and 2 consonants, can be formed from the letters of the word involute? Now we don't have to use all the letters because only 3 vowels and 2 consonants. So the letter has 5 words, right? Now one thing is the letters are distinct, so I don't have a problem in choosing, right? 3 vowels and 2 consonants. So what are the vowels? Vowels are I, E, O, U, and the consonants are N, V, L, T. So this is the situation 3, 5, 8, and this is the situation, right? Now we have to choose 3 vowels and 2 consonants and make words. So obviously when I'll make words, even permutation comes into picture. The order would be important जब हमें different words बनाने. So now first we'll do selection. 3 vowels out of 5 can be chosen in 5C3 ways. 2 consonants, out of 4 can be chosen in 4C3 ways, and 2 consonants out of 4, there are 4 consonants, can be chosen in 4C2 ways. After selecting 3 vowels and 2 consonants, right? After selecting 3 vowels and 2 consonants, they can be arranged in 5 factorial ways. So here there are 2 things. One, you need to choose them, and after choosing you have to arrange them. So total words will be equal to 4C3 into 4C2 into 5 factorial. 4C3 is just 4 and 4C2 is 6, and this is 120, right? So it will be 2880 words, I think. Let's just cross check. So 24 into 10, 240, and you add another 48 to it. So 2880 words can be formed. So this is a question of NCERT only, which is given in the miscellaneous. 2880 words can be formed. So only thing you have to see that these words do not have repeated letters.
If they have repeated letters, then it becomes difficult, because then we'll have to choose the likes and dislike ones, because letters are like. We have a question coming up, we'll discuss about that, right? So here, and in case they wanted only a 4-letter word, we would have chosen 8C4 and then arranged, so that would have been very easy, right? So now we move on to the next question. 11th, in how many ways can 7 plus signs and 5 minus signs? Now 7 plus, so note that all 7 are identical, be arranged so that no 2 minus sign are together. Okay, so one way which we can approach to this question is, let's put the plus sign, because minus sign have not to be together. So see, I put a plus sign, I put a plus sign, I put a plus sign. Now you see 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plus sign has been put. Now the minus signs are not to be together. So what are the possibilities? This 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. This 8 boxes, wherever you put a negative sign, there is no way that 2 minus can come together. Yes, 2 plus can come together. If you put a minus here, leave here. So 2 plus can be together. That's not the question. They want 2 minus should not be together. So let us put the plus sign. The 7 plus sign can be arranged in one way. Why? 8 factorial upon 8 factorial. If you remember something distinct, some are of one kind, so we divide. So 8 factorial upon 8 factorial, one way. Now, after arranging them, we have 8 positions for 5 negative signs, for 5 negative signs, right? So they can be, now if you want to arrange, that can also be done. They can be chosen, अगर मुझे choose करना है तो वैसे भी कर सकता हूँ. They can be chosen in 8C5 ways. Now see, the question why the students get confused is the word arranged. ये जो word arranged दिया हुआ है, students कहते हैं इसमें combination क्यों लगे, पर यहाँ पे देखो सब identical है. So 8C5 ways, that is equal to 8C3, that is equal to 8 into 7 into 6. So 56 ways. That's the answer. अब कुछ कहते हैं सर इसको आप परमुटेशन से क्यों नहीं करते? चलो जी परमुटेशन से कर देते हैं. सो अगर हम इसी क्वेश्चन को परमुटेशन से करने जाएंगे तो 8 साइंस, तो 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 फैक्टोरियल इनटू, अब आपके पास कितने पोजीशंस हैं? 8. तो 8 में आपने कितने लिए? 5. एकदम ठीक. But all 5 are identical, so you'll have to divide it by 5 factorial. So this is also same thing. 8 into 7 into 6 into 5 into 4. (56 ways). So that is again happening at 56 ways. So even what you can do, first let us arrange the 8 positive signs in this many ways. After arranging them, after sorry, not just a minute, this is 7 factorial. After arranging them, we have 8 positions. So this would again be 7 factorial upon 7. तो ये किसके लिए है? ये तो 7 प्लस साइन के लिए, 7 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल.
इनको बिठाने के बाद जगह कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कौन माइनस साइन, तो 8p5, 8 में से 5, लेकिन वो पांचों के पांचों आइडेंटिकल है, जब कोई चीज आइडेंटिकल होती उसको डिवाइड करते हैं. सो और यू कैन डू यूजिंग दिस मेथड, राइट. Now we go on to this next question. The question is, a father has 7 children, बहुत पहले की बात है, आजकल नहीं होता, and he takes them to zoo 3 at a time. तो वो 3 को ही जू पे एक साथ ले जा सकता है, उसके पास अरेंजमेंट ऐसा है. हाउ मेनी टाइम्स डज द फादर गो. तो 7 चिल्ड्रन को जब 3 at a time ले जाएगा, सो now there are 7 children and taking 3 at a time. देखो ऐसे फादर को लेके 8 हो जाएंगे, लेकिन फादर ने तो जाना ही जाना है, उनकी तो मैं चॉइस कर ही नहीं सकता. चॉइस किसकी होनी है, 7 बच्चों में से कौन सा 3 जाएगा. अब ऐसे देखो 8 लोग जा रहे हैं फादर को मिला के, और वो तो हमेशा ही सिलेक्टेड है, तो बाकी कितने जाएंगे, 3 7. सो देयर आर 3 चिल्ड्रन, देयर आर 7 चिल्ड्रन एंड टेकिंग 3 at a time. It can be done in 7c3 base, which is equal to 7 into 6 into 5 upon 1 into 2 into 3. So that is 35 base. Now फादर तो हमेशा ही सेलेक्ट हो गया, 8 लोग बोले, ही इज ऑलवेज सेलेक्टेड, तो उसको तो आउट हो गया, 1c1 बेस. बाकी कितने बचे, 7 में से 3 दिस. सो फादर विल गो 35 टाइम्स. समझ में आ गया ये. अब हाउ डज ए पर्टिकुलर चाइल्ड गो. उसने कहा कि एक बच्चा है वो हमेशा जाता है, पर्टिकुलर चाइल्ड. जैसे मैंने फादर का केस दे दिया था ना कि भाई उसको तो जाना ही जाना है, तो हाउ ऑफन डज ए पर्टिकुलर चाइल्ड गो. तो नाउ वन पर्टिकुलर चाइल्ड इज सेलेक्टेड, उसको हमने सेलेक्ट कर लिया. नाउ remaining 2 can be selected from. अब आप देखो 7 में से 3 बच्चे जाने, ठीक है ना, 7 में से 3 चिल्ड्रन जाने हैं. नाउ व्हेन यू टूक ऑफ 7 चिल्ड्रन एंड 3 at a time, तो एक पर्टिकुलर चाइल्ड को तो कितनी बार जाएगा, तो कोई भी एक पर्टिकुलर चाइल्ड को हम ले लेते हैं कि जाना है, ठीक है. तो अब वन पर्टिकुलर चाइल्ड इज सेलेक्टेड, तो बाकियों को कितने नंबर ऑफ वेज में जाएंगे वो हमें देखना है. सो नाउ रिमेनिंग 2 कैन बी सेलेक्टेड फ्रॉम कितने, तो 7 चिल्ड्रन है एंड ही टेक्स 3 at a time. तो हाउ मेनी टाइम्स द फादर गोज, तो ऑब्वियसली द फादर गोज 7 3 टाइम्स. हाउ ऑफन डज ए पर्टिकुलर चाइल्ड गो. अब कोई भी हम पर्टिकुलर चाइल्ड बच्चे को दे देते हैं कि भाई वो है. अब अगर हम उसको देखें कि एक पर्टिकुलर बच्चा कितनी बार जाता है, तो कॉन्सेप्ट ये है कि तो एक तो पर्टिकुलर जाएगा ही जाएगा. नाउ रिमेनिंग 2 कैन बी सिलेक्टेड फ्रॉम 6 इन 6c2 ways. So that is equal to 6 into 5 upon 1 into 2, that is 15. So particular child, कोई भी एक particular child, a particular child goes 15 times. Got it?
तो पहले 7 और एक फादर 8 था, तो वो तो हमेशा ही फादर एज गुड एज सेलेक्ट हो गया, तो बाकी 3 7C3 वेज हुए। अब फादर तो जाना ही जाना और ये तो सेलेक्टेड हो ही गया एक पर्टिकुलर, तो बचे कितने, 3 में से एक तो यही आ गया 2, तो 6C2, 7 में से एक तो पक्का ही हो गया। सो दिस इज द आंसर। नाउ दिस इज a example of NCERT and a very commonly asked question. A library boy has boy has 3 library tickets and 8 books of his interest in the library. 8 किताबें उसके मतलब की। Of this 8 he does not want to borrow chemistry part 2, वो part 2 नहीं लेगा unless part 1 is also borrowed. How many ways can he do this? अब ये भी कई बच्चे गड़बड़ कर जाते हैं। अब देखिए, पहले तो सिंपल 2 केस बनाता हूं, फिर आपकी प्रॉब्लम भी बताऊं। नाउ पार्ट 1 इज नॉट बोरोड। मैं कहता हूं कि भाई पार्ट 1 बोरोड ही नहीं है। सो पार्ट 1 इज नॉट बोरोड, case 1. So in this case he will not borrow part 2 also, वो part 2 भी नहीं लेगा। So total number of ways अब देखो 8 किताबें हैं, उसने पार्ट 1 बोरो नहीं किया तो ऑब्वियसली पार्ट 2 नहीं करेगा। सो टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ बोरोइंग थ्री बुक्स out of 8 is, or not 8 भाई, वो भी 3 books out of remaining 6 is, भाई 2 किताबें तो आउट हो गई ना, ये क्या हो जाएगा, is 6C3. So that is equal to 6 into 5 into 4, 20 ways. तो ये केस हो गया जब पार्ट 1 वो बोरो नहीं करता। अब हम ये कह लेते हैं कि पार्ट 1 इज बोरोड, जो पार्ट 1 है इज बोरोड, वो बोरो कर लेता है, तो पार्ट 1 वो बोरो कर लेता है। सो पार्ट 1 इज बोरोड। अब यहां बच्चे गलती कर देते हैं, वो ये कहते हैं कि अगर उसने पार्ट 1 बोरो कर लिया ना तो पार्ट 2 भी बोरो करेगा। अब ध्यान से पढ़ो, ही डज नॉट वांट टू बोरो, वो अगर 1 नहीं लेता तो 2 नहीं लेगा, ये पक्का है, लेकिन कहीं भी नहीं लिखा कि अगर पार्ट 1 बोरो किया है तो पार्ट 2 बोरो करेगा। ही मे और मे नॉट बोरो, वो है। अब बच्चे वहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो खाली बोरो करा देते हैं। So part 1 is borrowed. So in this case, he has to choose. In this case, he has to choose remaining 2 books. एक तो हो गया ना, remaining 2 books out of 7, ये सम out of 7, which can be done in so which can be done in, कितनी वेज हो जाएंगे बच्चे, which can be done in 7C2 ways.
So that will be equal to 7 into 6 upon 1 into 2, 21 ways. So total ways will be 20 plus 21, 41 वेज हो जाएगा। अब मैं उन लोगों की भी थोड़ी सी समस्या दूर कर दो। केस 2 मैंने कहा भाई पार्ट 1 इज बोरोड, तो कुछ को ये बात समझ में आती है कि सर वो पार्ट 2 बोरो भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता। तो अब इसको देखो, मैं तुम्हें समझाता हूँ कि बहुत शॉर्ट में समझो यार, कि पार्ट 1 के साथ पार्ट 2 बोरो कर लेता है, तो 2 किताबें आ गई। अब कितनी किताब बची? एक, कितने में से? 6 में से, तो 61 हो गया, खत्म। अब मान लो पार्ट 1 ली, पार्ट 1 बोरो की और पार्ट 2 बोरो नहीं की, पार्ट 2 बाहर हो गई है। बात समझो, पार्ट 1 ली, पार्ट 2 बाहर हो गई, तो एक ही किताब आई और पार्ट 2 तो ले नहीं रहा, तो अब बाकी 6 बचे, उसमें से 2 लेनी पड़ेगी। अब ये 2 क्यों ले रहे हैं? क्योंकि 3 तो ये पूरी करेगा, और वहां 1 क्यों लिया? क्योंकि पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों थी। 61 6 होता है, इसको कैलकुलेट करोगे 15 आएगा। कितना आया? 21। वही तो आया हमारा सीधा सीधा 21 वेज। सो एडिंग दिस टू यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ वेज। ठीक है, इसको आप लिखें। दिस इज अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एनसीईआरटी एग्जाम। नाउ आफ्टर दिस विल मूव ऑन टू, आई होप दिस इज क्लियर, किसी को कोई डाउट होना नहीं चाहिए, आप आराम से देख सकते हैं इसको। नाउ लेट अस गो टू दिस क्वेश्चन। इन एन एग्जामिनेशन, so in an examination a paper consists of 12 questions, part A and part B. पार्ट ए में 5 क्वेश्चंस है, पार्ट बी में 7 क्वेश्चंस है। ए स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस। देखो मैंने यहाँ टेबल में डाल दिया, 5 है, 7 है, 8। सिलेक्टिंग एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच, ये भी एनसीईआरटी का है। ईच पार्ट से 3, इन हाउ मेनी वेज कैन द स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चन सच दैट पार्ट बी इज इन मेजॉरिटी। ठीक है, तो selecting in how many ways can a student select the questions such that the part B is in majority। चलो अब पार्ट ए और पार्ट बी से लेना है, तो पार्ट ए से 3 लिया, तो यहां से तो 5 क्वेश्चन लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट सेलेक्टिंग। अब इसको मैं 2 पार्ट समझाता हूं, पहले तो ये, अब अगर दूसरा ये 4 लेता है तो यहां से 4 और ये 5, तो ये 3। तो अगर हम इसको करते हैं पार्ट बी मेजोरिटी में, बाद में इसमें से देख लेंगे। नंबर ऑफ वेज क्या होंगे? 5 में से 3 5C3 इंटू 7C5। 5C3 आपको पता है 5C2 के बराबर होगा, तो 10 और ये 21, तो 210 वेज हो जाए। अब दोनों में से 4 है, मैं आऊंगा, टेंशन मत लो। क्वेश्चन सेज कि 8 एटलीस्ट 3 फ्रॉम ईच, तो 3 तो दोनों में से लेना है, वो पहले। उसके कितने वेज है? फिर इन हाउ मेनी वेज कैन स्टूडेंट सेलेक्ट द क्वेश्चंस सच दैट पार्ट बी इन मेजॉरिटी, वो तो इसी टेबल से हम मिल जाएगा। 5C4 5 होगा, 7C3 तो 7 इंटू 6 इंटू 5 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3। तो 35 इंटू दिस इज दिस 375, सॉरी ये 3, ओके, दिस विल बी 375 और ये हो जाएगा 5C5 इंटू 7C3, तो 7C3 तो ये 6 कट गया, 35 हो गया। ठीक है ना, ये 6 आपका कट गया, 35। तो जो टोटल वेज है वो आप ऐड करोगे तो वो आएंगे 210 और 25, हमारा कितना था, सॉरी 35 इंटू 5 था, ओके 175, तो ये 175 ही है बच्चे।
170, अरे 175, ठीक है ना। 5C4 5 हो गया, ये 35 हो गया, 175, और हम लोग ऐड कर देंगे 35, तो 210 और ये भी 210 आ जाएगा, 420 वेज आ जाएंगे। ये टोटल हो। इन हाउ मेनी वेज कैन द स्टूडेंट सेलेक्ट सच दैट पार्ट बी इज इन मेजोरिटी। तो भाई यही एक केस है जिसमें पार्ट बी मेजोरिटी में होगा। अगर दोनों से 3-3 लेने हैं और पार्ट बी मेजोरिटी में आना है तो दिस इज द ओनली पॉसिबिलिटीज अगर इस कंडीशन। तो अगर खाली ये है तो 210 वेज। और अगर क्वेश्चन ये कंडीशन हट जाती है एटलीस्ट 3 और फिर पार्ट बी इन मेजोरिटी, तो फिर हो जाता है इधर से 1 ले लेंगे, इधर से 7, इधर से 2, उधर 6, इधर 3, इधर 5, दैट केसेस आगे। तो यहाँ पे पहला है कि कितने वेज में हम इसको पूरा कर सकते हैं, कितने वेज में मेजॉरिटी में रहेंगे, तो 210 वेज में वो मेजॉरिटी में रहेंगे आउट ऑफ ये टोटल पॉसिबिलिटीज, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, राइट। अब इसके बाद एक क्वेश्चन और रह गया, उसको हम कर लेते हैं। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने आपको इसके बारे में अभी बताता हूं। तो ये क्वेश्चन के बारे में बताते हैं। देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स। मैंने आज आपको इनवॉल्यूट कराया था, तो उसमें मैंने कहा था सारे अलाइक नहीं है, डिफरेंट है, अनलाइक है। नाउ हियर 4 लेटर वर्ड बनाना यूजिंग द वर्ड मैथमेटिक्स। अब अगर इनवॉल्यूट होता तो 8P4 कर देता मैं, क्योंकि कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ क्या है, 4 लेटर वर्ड्स है, कौन से 4 लेटर्स लेंगे, ये प्रॉब्लम है। और ये इसलिए प्रॉब्लम है कि इसमें कुछ लाइक है और कुछ अनलाइक। M कितने हैं, देखो 2, A कितने हैं 2, T कितने हैं 2, बाकी सब 1-1। अब मान लो आप 2 M ले लो, तो जो वर्ड बनेगा MM के साथ, वो इधर M और इधर M एक जैसा ही दिखेगा, तो हमारे को उसको फिर देखना पड़ेगा। तो यहाँ हमें केसेस बनाने पड़ेंगे कि हम क्या क्या ले सकते हैं। अब पहले तो आप ये समझो, हमारे पास जो बाइफर्केशन है ये है कि ये, नाउ सिंस ऑल लेटर्स आर नॉट डिस्टिंक्ट वी कैन नॉट यूज NPR। NPR तो होता है जब ऑल डिस्टिंक्ट होता है, हम यूज कर लें। अब यहाँ 2 MM है, 2 AA है, 2 TT है और ऐसे। तो मेरे को केसेस बनाने पड़ेंगे। हमको 4 लेटर्स चूज करने हैं और उन 4 को अरेंज करने हैं। समझ में आएगा। अब देखते हैं केस 1, केस 2 और केस 3 के बारे में, ठीक है। अब हम लोग इसको केस 1 को देखें तो केस 1 क्या है हमारा, केस 1 है ऑल 4 लेटर्स डिस्टिंक्ट। आप देखो चारों के चारों भाई हमारे डिस्टिंक्ट है, मतलब M हो सकता है, एक ही M, मैंने 2 M क्यों नहीं लिया, सारे डिस्टिंक्ट होने चाहिए। तो 2 M में से एक M हो सकता है, एक ATCHEIHS, ये EHIS। कितने हुए, 8 लेटर्स हुए। इन 8 लेटर्स में से कितने लेने हैं भाई मुझे, 4। तो कितने वेज होंगे, 8C4 वेज, जैसे इनवॉल्यूट में हमने किया। और उनको जिनको चूज किया है उन्हें अरेंज करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड्स है, वर्ड्स में तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। तो 8C4 कैसे हुआ, इन 8 में से कोई 4 और उन 4 को अरेंज किया इनटू 4 फैक्टोरियल। सो आउट ऑफ 8 लेटर्स 4 कैन बी चोजन इन 8C4 वेज एंड द 4 चोजन कैन बी अरेंज्ड इन 4 फैक्टोरियल वेज। तो 8C4 इंटू 4 फैक्टोरियल, इतने वर्ड्स आ जाए। समझ में आया। तो हम कह रहे हैं कि जो 4 लेटर हैं वर्ड में सब डिस्टिंक्ट है। तो एक M निकाल लिया, एक A, एक T, बाकी ये तो सब डिस्टिंक्ट। अब हम अपने केस 2 पे चलते हैं। 2 लेटर्स ऑफ 1 काइंड एंड 2 डिस्टिंक्ट। अब इसका मतलब क्या हुआ कि भाई 2 तो अलाइक हो, या तो 2 M आ जाए, या 2 A आ जाए, या 2 T आ जाए, ठीक है। एंड बाकी 2 अलग आए। तो पहले तो हमारे पास 3 ऐसे पेयर हैं, देयर आर 3 पेयर्स ऑफ 2 अलाइक, ठीक है। अब मान लो मैंने 2 M लिए, एक केस ये हो गया, एक केस हो गया, 2 M लिए, एक केस हो गया, तो 2 वर्ड आ गए। बाकी क्या बचे, बाकी कितने बचे भाई,
अगर आपने 2m ले लिए, अब आप समझो इसको, प्रैक्टिकली समझो, 2m ले लिए, 2m आ गए, अब बाकी दो और आने हैं, तो अब इन दोनों को तो नहीं लिया, तो एक a आ जाएगा खाली, एक t अवेलेबल है, c है, डिस्टिंक्ट का मतलब फिर एक a, एक t, एक c, एक e, एक h, एक i और एक s आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएंगे, उन 7 में से कोई 2 लेना है, तो 7c2 वेज हुए, एक केस खत्म। दूसरा केस है 2a हो सकता है, तो उसके भी ऐसे 7c2 बनेंगे। 2t हो सकता है, इसके भी ऐसे ही बनेंगे। तो देर आर 3 पेयर्स टू अलाइक, सो 2 वर्ड्स कैन बी चूजन इन 3c1 वेज। 3c1 क्यों लिया? इस 3 पेयर में से एक पेयर को लेना है, तो 3c1, और नहीं लेना तो मैंने आपको समझा ही दिया, 2m का एक केस, 2a का एक केस, 2t का एक केस, 3 केस बने। नाउ रिमेनिंग 2 वर्ड्स कैन बी चूजन फ्रॉम रिमेनिंग 7। रिमेनिंग 7 ऐसे होंगे, 2a इधर आ जाएगा तो m उधर चला जाएगा, तो इन 7c2 वेज। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स हो जाएंगे 7c2 इंटू 3c1। अब 4 को एक किया, अब आपको 4 समझ में आ रहा है, 2 इधर और 2 इस पेयर में, ये जो 1 है इसमें 2 है, 4 फैक्टोरियल हो गए। और अपॉन 2 क्यों किया? क्योंकि चाहे 2m सेलेक्ट हो चाहे 2a हो, वो रिपीट हो रहे हैं, तो रिपीट वाले हम इसको ऐसे करें। तो आई होप यू आर क्लियर विद दिस, कि अगर मैंने 2m ले लिए तो a और t नहीं लिया, तो मेरे तो केस क्या है कि 2 अलाइक होने चाहिए, 2 एक जैसे और 2 डिस्टिंक्ट, तो 2m होगा, बाकी इनमें से 2 कोई, फिर 2a होगा, फिर m t c e h i s में से कोई होगा, और इसी तरह 2t, ये 3 केस होंगे। ये ऐसे आ जाएंगे, तो इन तीनों केस, तो इसमें भी आंसर क्या होगा? 7c2 हो जाएगा। ये तो एक केस, तो 3 केस में 7c2 है, तो इंटू 3 इंटू 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या? 2 ये और 2 इनमें से, और ये 2 रिपीट हो रहे हैं, तो अपॉन 2 फैक्टोरियल, वही किया है। ठीक है गाइस, आपको समझ आ गया होगा ये। अब बस एक ही केस रह गया, और वो केस क्या रह गया भाई? टू अलाइक ऑफ वन काइंड, टू अलाइक ऑफ अदर काइंड्स। मतलब भाई 2m हो गए या 2a हो गए, 2m हो गए या 2t हो गए, ऐसे करके। तो 2 alike of one kind and 2 alike of other kind. So there are 3 pairs of 2 alike, out of which 2 pairs लेने हैं, चाहे mm ले लो, ये ले लो, 3c2 ways, तो इनको ले लिया। अब 2 ये और 2 ये, तो टोटल 4 हो गए, 4 फैक्टोरियल। अब अपॉन 2 2 क्यों किया? 2m 2a, तो 18 वर्ड्स इसमें बन जाएंगे। तो 2 alike of one kind and 2 alike of other kind, तो 3c2 में पहले चूज किया। 4 फैक्टोरियल क्यों? 2m और 2a, 4 वर्ड्स टू बी अरेंज, 4 फैक्टोरियल अपॉन ये, और 2m 2t होगा तो भी यही, तो 18। तो अब वो केसेस क्यों नहीं लिए? 3c2 में केस ले तो लिए, 18 वर्ड्स हो गए। तो अब टोटल वर्ड्स कितने बनेंगे? टोटल वर्ड्स कितने होंगे भाई? केस 1 में कितने थे? 1680 प्लस 756 एंड प्लस 18 लास्ट केस में। सो विल हैव 14 13 14 15 14 2 4 5। ठीक है, तो इतने पॉसिबल वर्ड्स हम बना पाएंगे। इसी तरह वर्ड है इनइफेक्टिव, आप उसके बना लो। आत्मनिर्भर आजकल वर्ड चल रहा है, प्रधानमंत्री ने जी दिया है आत्मनिर्भर, तो उसके भी हो जाएंगे, जिसमें भी रिपीट होता है। स्कूल हो गया, उस वर्ड में भी आ गया, परमुटेशन इटसेल्फ में आ गया। तो आपको यही तरीका है केसेस बना के। ठीक है, सो दिस आर द टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई सीबीएसई स्कूल्स पूछते हैं, हालांकि सीबीएसई ने ऐसे नहीं दे रखे, बट दे डू आस्क। सो दिस इज वन ऑफ द questions, right? So tell us how you like the class. We'll keep giving you more questions like this.
and if you have problems, do mail to us. We'll give you solution, maybe live if possible, if you want live solutions also, as well as mailed one also. So you can keep mailing your doubts, liking the channel, subscribing, sharing, and keep watching our videos, right? Thank you. This is Keshav Agarwal signing off. Bye guys.